को देखना है। यस, नाउ यू कैन राइट योर प्रेजेंट इन कमेंट बॉक्स। आप अपनी प्रेजेंट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अपना नाम लिख करके या केवल प्रेजेंट लिख दीजिए। ये रिकॉर्डेड है, सभी बच्चे की जो प्रेजेंट है वो रिकॉर्ड होगी। सभी को रेगुलर क्लासेस लेनी है और अपना वीडियो ऑन करके रखना है। बेटा अपना वीडियो ऑन करके रखिए, बार बार बोलना ना पड़े। सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन करेंगे। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग बेटा। सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन करके रखेंगे और अपना माइक अनम्यूट करके रखेंगे, क्योंकि अभी तक मैं सभी बच्चों से वाकिफ नहीं हूँ। प्राइमरी में आप पढ़ते थे, आपकी क्लास भी इतनी नहीं होती थी। वीक में एक क्लास होती थी मेरी, कभी कभार गेम्स की या फिर म्यूजिक की या ऐसी कुछ क्लास होती थी जिसमें मैं आता था। और लगभग 1 साल हो चुके हैं हमें आपस में मिले हुए, जुड़े हुए। तो चेहरे भूल ना जाएं, इसलिए चेहरों से मिलाना बड़ा जरूरी है। एक दूसरे को जानना समझना बहुत जरूरी है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में आमने सामने का कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। ओके, वीडियो ऑन करके ही रखिए बेटा, ऑफ मत करिए, ऑन करके ही रखिए, ठीक है। अब मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, उस वीडियो को आप देखिए ध्यान से। बीच में कोई भी अपना माइक ऑन नहीं रखेगा। आज तो लेंगे, वीडियो देखना है। हाँ बेटा। What is history? History is the study of our past, a record of the events that happened long, long ago. It tells us about the life of the people during a particular period of time. It is a written account of the development of human civilization. History helps us to understand the political and social systems, economic activities, and culture of people, and the causes and effects of events in a sequence. History not only looks at important events such as wars, revolutions, change of governments, and great inventions, but also explains why and how. It is the story of the progress of man from the beginning of civilization to the present time in a chronological order. History, or his story, is indeed the story of man. Relevance of history. Why do we study the past? We study the past to learn how our forefathers lived. History is the link between the past and the present. Every new thing invented and every new idea has its origin in the past. History tells us about kings, queens, and about the life of ordinary people. We learn about the achievements of great men, how they changed people's lives and influenced not only them but future generations also. It answers many questions about past events. Star fact: the word history comes from the ancient Greek word histo, which means know this. People who study and write about our past are called historians. गुड History मॉर्निंग सर। helps us to understand our society. In India, we have different kinds of people, languages, and religions. History tells us how we came together and how we learned to live together. It helps us to understand the concept of unity in diversity. Star fact: history teaches us about our culture. By culture we mean art, architecture, sculpture,
literature, religion, and language. Culture also includes how we dress, how and what we eat, what rituals or festivals we celebrate, our amusements, and the values we cherish. History helps us to learn from our past mistakes so that we do not repeat them. It teaches us to remain united and be proud of our culture. Hence, if a culture or civilization needs to develop, it needs to be linked closely and be able to understand and appreciate its past, its history. Star fact: ancient manuscripts were written on dried palm leaves or on thick bark of trees, copper plates, or even on solid rocks and pillars. Sometimes they were written on animals' skin called parchment. India has a rich collection of manuscripts. देखो बच्चों, आपने ये वीडियो जो देखा है, इस वीडियो में आपको दिखाया गया है कि हिस्ट्री क्या है। ठीक है, अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके और ये बताना चाह रहा हूँ कि सोशल साइंस, देखो नॉर्मली हमारे एक प्रश्न जरूर होगा, आप सभी ने पहले सोशल साइंस पढ़ा नहीं है ना, मोस्टली बच्चों ने सोशल साइंस को नहीं पढ़ा है, तो सभी के दिमाग में क्वेश्चन जरूर होगा कि सर ये नया सब्जेक्ट हमारे लिए कहाँ से, क्योंकि मैथ्स आप पढ़ते आ रहे हैं, है ना, साइंस आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, इंग्लिश आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो नया सब्जेक्ट कौन सा हुआ आपके लिए? सोशल साइंस हुआ। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूं कि सोशल साइंस नया सब्जेक्ट नहीं है। प्राइमरी क्लास तक आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, उस ईवीएस लिटिल ब्रदर कह सकते हैं और बिग ब्रदर के रूप आपके सामने है। ईवीएस में आपको छोटी छोटी चीजें सिखाई गई थी, फोर्ट क्या होते हैं, क्या होती है, एनवायरनमेंट क्या होता है, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इन सब के बीच में थोड़ी थोड़ी दी गई थी। अब जब आप सोशल साइंस में आते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, सोशल साइंस हमारे लिए कैसे, क्यों हम सोशल साइंस को पढ़ रहे हैं, हमारी डेली लाइफ में सोशल साइंस का क्या यूज है, ये मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। तो ये स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताऊंगा यहाँ, शायद आपको शो हो रहा होगा। व्हाट्सएप दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। यस सर। ये व्हाट्सएप में बेटा सुनिए, यस यस बेटा, ओके। देखो ये व्हाट्सएप में आपका एक ग्रुप आइकन दिखाना चाहूंगा मैं आपको। जैसे ही आप अपना व्हाट्सएप का ग्रुप ओपन करते हैं तो देखो ग्रुप आइकन में आप देखो ये फोटो जो लगी हुई है ना ग्रुप आइकन में, ये आपका टाइम शेड्यूल है। सबसे पहले आप इसको जरूर आप नोटिस करें कि आपकी क्लास कब कब कौन सी होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको आज एक फोटो डाला था, ये देखो आप इसको देख सकते हैं, ये फोटो मैंने आपको डाला था। इसमें ये बताया गया है इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंस, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंस कि सोशल साइंस है क्या, इसका एक परिचय है। तो मैं इसको पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और कोई भी आपको डाउट्स हो, कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछिएगा। इमेजिन दैट यू ओन्ड ए टाइम मशीन, इमेजिन करो, कल्पना करो कि आपके पास एक टाइम मशीन है, and that you traveled back to those days when your great grandparents were children। और मैं आपसे कहूं कि आप उस समय में चले जाइए, टाइम मशीन आपके पास है, आप उस समय में चले जाइए जब आपके दादा दादी नाना नानी बच्चे थे। यू फाउंड दैट योर होम, आप पाओगे कि आपका घर कैसा था उस समय जब आपके दादा दादी बच्चे थे। एंड सराउंडिंग लुक वेरी डिफरेंट, और जब आसपास के माहौल को आप देखते हैं तो आज के माहौल से बहुत डिफरेंट माहौल आपको वहां दिखाई देगा। इफ यू ट्रेवल बैक फर्दर, फिर वापस आप और पीछे जाते हैं, अगर आप उस पीछे वाले समय से, यू will be even more surprised and fascinated by the food। आप देखेंगे कि उस समय का खान पान, उस समय का जो भोजन था, फूड था, वो आज के समय से अलग है।
उस समय का जो जो कपड़े थे, क्लोथ थे, वो आज के समय से कुछ अलग थे। इवन द लैंग्वेज दैट योर एंसेस्टर्स वर यूजिंग, यहां तक कि भाषा में भी, लैंग्वेज में भी आज के समय से पहले के समय में बदलाव आया है। Would not it be interesting to know what happened in the past? क्या ये चीज आपको थोड़ा सा ऐसे मोहित नहीं करती या आपको सरप्राइज नहीं करती कि चीजें कैसे घटी है पहले के समय में, आज के समय में? ये जो बदलाव हुआ है, इन बदलाव के पीछे क्या कारण रहे हैं, बदलाव हुआ है तो क्यों हुआ है, और कैसे कैसे चीजें बदली है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पापा खुद टीचर हैं, टीचर थे। उन्होंने मेरे को मुझे एक बार शर्ट खरीदनी थी, तो मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे एक शर्ट दिला दो। तो पापा कहते हैं कि बेटा आपके पास 2 शर्ट है ना पहले से ही। फिर मैंने कहा सर पापा एक शर्ट और चाहिए मुझे। तो वो मुझे बोले कि देखो हमारे जमाने में, देखो समझना इस बात को, इतिहास कैसे हमें सिखाता है। वो कहते थे हमारे जमाने में जो बोरा नहीं होता था, बोरे को हम फाड़ करके, चीर करके, और एक बीच में से छेद निकाल देते थे, गर्दन, उसमें से गर्दन घुसा देते थे। आगे की तरफ बोरा लटका, पीछे की तरफ बोरा लटका था, और अगल बगल से यहां से उसको सिल दिया जाता था, वही हमारा शर्ट बन जाता था। देखो कपड़ों में चेंजेस आया है, लिखने में चेंजेस आया है। पहले क्या करते थे, भोजपत्र हुआ करते थे, पेड़ के जो पत्ते हुआ करते थे उनके ऊपर, कपड़े के ऊपर लिखा जाता था। अब हम कागज पर लिखते हैं। पहले कॉपर जो तांबा होता था, तांबे के ऊपर लिखा जाता था, पत्थर के ऊपर लिखा जाता था। पहले की आप मुद्रा देखो, जो आप हड़प्पा देखोगे, आप 6 क्लास में आप पढ़ोगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन में पत्थर होता था, एक सील होती थी। जैसे आजकल रुपया जो होता है, सिक्का कॉइन जो होता है ना, आज की तरह का कॉइन नहीं होता था, आज तो मेटल्स के बनते हैं। पहले क्या होता था, पत्थर होता था, एक विशेष पत्थर होता था, उसके ऊपर मोहर बना दी जाती थी, साइन बना दिया जाता था, उस को व्यापार किया करते थे, ट्रेड। देखो व्यापार, अब जब बात ट्रेड की आई तो देखो बदलाव आता था। पहले ट्रेड कैसा होता था, वस्तु विनिमय होता था, है ना। कोई भी थिंग्स होती थी, कोई भी चीजें होती थी, कोई चावल उगाता है, कोई बीट उगाता है ना, कोई राइस है, कोई चावल। अब आपस में क्या करते थे, एक दूसरे से लिया करते थे। कोई मिल्क प्रोड्यूस करता था, कोई वीट प्रोड्यूस करता था, तो जिसको मिल्क की आवश्यकता होती थी, कोई उसको चीज दिया करता था। तो आपस में ऐसे ट्रेड हुआ करता था। पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पहले पैदल जाया करते थे, ऑन फुट। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कैटल्स को रखना शुरू किया, तो बैलों का इस्तेमाल हुआ, है ना, घोड़े का इस्तेमाल। आप देखोगे पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, सबने देखा होगा ना, फिल्में देखते हो, पिक्चर्स देखते हो ना, पिक्चर्स में राजा महाराजा किस पे आते जाते हैं, घोड़ों पे, हॉर्सेस पे, है ना, हॉर्स राइडिंग करते हैं ना। हाँ, घोड़ों पे। तो और आज के राजा महाराजा किस में घूमते हैं, आज अगर कोई किंग है कार में, है ना। यस यस। तो चीजें देखो, चीजें कितनी बदली है ना। ठीक है, आगे और पढ़ो इसको और समझ में आएगा। डू यू रियलाइज दैट वी कैन रिलेट विद आवर पास्ट इवन टुडे? क्या हम अपने आज के समय को, अगर हम देखना चाहें आज के समय को पास्ट से हम जोड़ना चाहें, तो बहुत सारी चीजें हैं जो जुड़ती हुई आज तक हम यहाँ पहुंचे हैं। जैसे मैं जो ये शर्ट पहनता हूँ, क्या पहले के जमाने में ऐसे शर्ट होते थे? यस और नो? नहीं होते थे, है ना। पहले का जो कपड़ा होता था वो एकदम सिंपल कपड़ा होता था, ये डिजाइन्स नहीं हुआ करती थी। आप जो डिजाइन्स देख रहे हैं ना, वो डिजाइन नहीं हुआ करती थी। पहले क्या होता था, सिंपल एक फैब्रिक हुआ करता था, सभी लोग सिंपल व्हाइट कलर का पहनते थे या ब्लैक होता था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में बदलाव आया, है ना, इंप्रूवमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो कपड़े में भी सुधार हुआ, है ना, चीजों में भी सुधार हुआ, हमारे खान पान में भी हमने सुधार किया। आप सुनोगे पहले के जमाने में हम रॉ मीट खाते थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, कच्चा भोजन खाते थे, फल फूल कंदमूल जो रूट्स होती थी पेड़ों की, उनको खाया करते थे। आज हम सब लोग खाना पकाते हैं, पहले खाना पकाया नहीं जाता था, है ना। इन चीजों से हम ये समझते हैं कि पहले का समय और आज का समय काफी बदल चुका है। और यही चीज हम अगर आज सीखें,
यही सोशल साइंस है। सोशल यानी समाज से जुड़ा हुआ, साइंस यानी विज्ञान। देखो दोनों चीजों को समझो। सोशल मतलब समाज से जुड़ा हुआ। समाज किनसे बनता है? बहुत सारे घर एक जगह, एक गांव में अगर हम बहुत सारे घर हैं, वो सभी एक मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं। एक सोसाइटी में बहुत सारे घर हो सकते हैं, है ना। एक मोहल्ले में बहुत सारे घर हो सकते हैं। एक घर में काफी सारे कैंडिडेट्स हो सकते हैं। अगर हम उनकी डेली लाइफ को अगर समझें कि वो दिन सुबह उठते से रात को सोने तक क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, यही हमारी सोसाइटी है, यही हमारी सोशल लाइफ है। और जब बात साइंस की करते हैं, क्योंकि साइंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ डिटर्मिनेशन। एक फिक्स चीज होती है, एक डेफिनेट चीज होती है, उसे हम साइंस कह सकते हैं। यानी कोई भी चीज हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है ना। साइंस की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि वह सत्य की बात करता है। कोई भी चीज होती है उसके पीछे कारण देखता है, सर पेज बिना नंबर कारण क्या कोई है? चीज नहीं होती है। बेटा कोई पेज नंबर नहीं है, आज मैं बुक से नहीं पढ़ा रहा हूं। आज आपको मैं नॉर्मली एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि सोशल साइंस क्या है, ठीक है। यस सर। आगे इसी में आप पढ़ते जाइए। डज इट नॉट साउंड लाइक अ मिस्ट्री दैट वी मस्ट सॉल्व। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे पास टाइम में है जिनको हम सोल्व कर सकते हैं, जिनको हम समझ सकते हैं आज के टाइम से रिलेट करके। In order to do this, we will use sources to understand how human life progressed from prehistoric times till today। यानी हमारे पास अगर हम पास्ट को देखना चाहें, आप अगर अपने दादाजी हैं, दादाजी के समय जब वो बच्चे थे, अगर आप उन चीजों को समझना चाहें तो बताओ कौन सी चीजें हैं, मुझे बताओ, आप बताइए। अगर आप अपने दादाजी के बचपन की चीजों को देखना चाहें, समझना चाहें, तो क्या चीजें हैं, क्या सोर्स हैं जिनसे आप देख सकते हैं, बताइए मुझे। सर कपड़े। कपड़े, वेरी गुड। पुराने सर कोई खान सोर्स पान। है उससे हम सीख सकते हैं। सर उनकी पुरानी और खान पान, पहले वो क्या खान पान, देखो हम दादाजी से बात करके ना, हम उनके बात करके जान सकते हैं। कोई उस समय की कोई बुक लिखी हुई हो, पुराने समय हमारे पास हो, वो हमारे लिए सोर्स का काम करेगा। कॉइन्स, उस टाइम के कोई कॉइन्स हो, उनसे हम इंस्क्रिप्शंस, उस समय के कोई आर्टिकल्स हो, कोई लेख हो, कोई पहाड़ पे कोई लिखा हुआ हो, पत्थर पे कोई लिखा हुआ हो, कॉपर पे कुछ लिखा हुआ हो, उनसे हम सीख सकते हैं। सोशल साइंस में इनको हम सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सोर्स। सोर्स। सोर्स, सोर्स यानी स्रोत, यानी जिनसे हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। उन चीजों से जिनसे हम नॉलेज गेन कर सकते हैं उन्हें हम सोर्स कहेंगे, ठीक है। अब इनका उद्देश्य क्या है? सोशल साइंस हम क्यों पढ़े? सबसे पहले तो हमारी डेली लाइफ को समझने के लिए हमें सोशल साइंस पढ़ना है कि हम जो डेली लाइफ के जो काम करते हैं उनको हम किस तरह से करें। पहले किस तरह से होते थे, पहले हमारे समय में, जो पहले का समय है उस समय में हमने क्या मिस्टेक्स करी हैं, क्या गलतियां करी हैं। इतिहास हमें ये सिखाता है कि जो आपने पहले गलतियां की हैं आपके पूर्वजों ने, वो आप गलती ना करें। दूसरी बात, हम जो डेवलपमेंट करते हुए यहां तक पहुंचे हैं उनसे हम क्या सीख सकते हैं। जैसे दादाजी और दादी से, नाना और नानी से अगर हम बात करें तो वो हमसे, हम कोई भी काम करते हैं तो वो हमें डांटते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसा करने से ऐसे होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मेरे हाथ में ये पानी की बोतल है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता। अब मैं क्या करूंगा, जैसे पानी की बोतल है, इस पानी को लेकर के अपने कपड़े पे डाल देता हूं तो ये गीला हो जाता है। अब मुझे क्या हुआ, एक्सपीरियंस हुआ कि पानी से, है ना, इससे सीखा मैंने। तो इतिहास एक तरह से हमें ये सिखाता है पहले की चीजों से कि कोई चीज करने से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। आग को छूने से, किसी ने आग को छुआ तो उसकी अंगुली जली, किसी पहली चीज को छुआ तो उसकी अंगुली कटी, तो वो कहेगा कि देखो इससे हम ऐसा करने से ऐसा हुआ। कोई गलत काम करने से हमें नुकसान, सीखा कि अगर हम गलत करते हैं तो हमारा नुकसान होता है। तो इतिहास हमें सिखाता है।
ज्योग्राफी है। जैसे आप नॉर्मल सी बात बताइए, कौन सा मौसम चल रहा है इस समय? एक तरह से समर शुरू हो चुका है ना? समर में आप कौन से कपड़े पहनते हैं? समर। है ना, समर 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 चल रहा है, ठीक है, गर्मी का मौसम है। अब गर्मी के मौसम में आप ऊनी कपड़े पहनते हो, वुलन पहनते हो आप? नो सर। नो सर। नहीं पहनते हो ना? क्यों क्यों नहीं पहनते वुलन? वुलन क्यों नहीं पहनते हैं हम? गर्मी लगती है। गर्मी गर्मी लगती है। गर्मी क्यों लगती है? गर्मी क्यों लगती है? सन सन हीट करता है ना, सन गर्म होता है। सर क्योंकि वो गर्म होता है। हाँ, वेरी गुड। तो हमें गर्म मौसम में ठंडे रहने वाले कपड़े पहनने चाहिए। ये चीज कौन सिखाता है? ये हमें ज्योग्राफी सिखाती है। अगर बाहर बारिश का मौसम है, बादल को देख करके आप समझ जाते हैं कि बारिश होने वाली है, तो अपने साथ क्या लेके चलोगे? अम्ब्रेला। रेनकोट, आप या तो आप रेनकोट साथ में लेके चलोगे या फिर अम्ब्रेला साथ में लेके चलोगे। तो ये बात कहां से सीखी आपने? ज्योग्राफी से। कहां से सीखी? ज्योग्राफी से। वेरी गुड। और देखो, जैसे एक किसान जो होता है ना, किसान बेटा, एक फार्मर हमसे ज्यादा ज्योग्राफी पढ़ता है, हमसे ज्यादा उसे ज्योग्राफी आती है। कैसे आती है? कि कौन से मौसम में उसे व्हीट प्रोड्यूस करना है, कौन से मौसम में उसे राइस प्रोड्यूस करना है, खेत में कितना पानी लग चुका है, कितना पानी और देना है, फसल में पानी लगता है तो क्यों लगता है, कौन सा फर्टिलाइजर उसे इस्तेमाल करना है, कितने एरिया में कितनी फसल पैदा करनी है, इस ये बेटर हमसे एक फार्मर जानता है। यही तो ज्योग्राफी है। अब बताओ, आपको अगर समझ में आया है तो मुझे बताओ कि क्या हिस्ट्री और ज्योग्राफी कोई आसमान से गिरा दी हो कि ये देखो से गिरा दी, ये मून से गिरा दी, अब इसको तुम पढ़ो? क्या नहीं है ना? क्लियर नहीं आ रही है सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ मेरी रही वॉइस है। क्लियर नहीं है? नो सर। यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक बेटा, मैं ऐसा करता हूँ, दोबारा से जोड़ करता हूँ, शायद आवाज ठीक आएगी आपको। ठीक है? यस बेटा, अब देखिए मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस सर। सर। यस सर। यस सर। इसका साउंड यहाँ से। अच्छा, ये इको हो रहा है ना? हाँ, ठीक है बेटा। अब मुझे जरा बताइए, अब जो हमने समझा पढ़ा कि सोशल साइंस हमारी डेली लाइफ की सब्जेक्ट है, आप में से कोई मुझे बताएगा क्यों है, कैसे है? हम कैसे कह सकते हैं कि सोशल साइंस डेली लाइफ की है? हम कैसे बोल सकते हैं ये बात कि सोशल साइंस हमारी डेली लाइफ की सब्जेक्ट है? कोई सा भी एक एग्जांपल बता दीजिए जिससे आप समझे कि हाँ सर ये तो डेली लाइफ से जुड़ी हुई सब्जेक्ट है। बताइए बेटा, सर बादल देख के हम आराम से बारिश का बताइए। अनुमान लगा लेते हैं। और वो किस सब्जेक्ट से जुड़ा है? सर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से। वेरी गुड, शाबाश। देखो, आपको आज जो मैं क्लास बता रहा हूं ये केवल ये है कि सोशल साइंस क्या है, उसमें हम कौन सी सब्जेक्ट पढ़ते हैं और हमारी डेली लाइफ से कैसे जुड़ी हुई है। जब आप इस तरह से पढ़ोगे ना तो आपको सोशल साइंस पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी।
आपको ऐसे बोर फील नहीं होगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं सोशल साइंस। हो सकता है अब से पहले आपने ईवीएस पढ़ी हो तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा हो। आप देखना, आपको मैं बहुत सारी स्टोरी सुनाऊंगा, बहुत सारी पुरानी चीजें दिखाऊंगा, बहुत सारे फोर्ट, बहुत सारे टेम्पल्स, ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा। इस पूरी क्लास में आप हजारों लोगों से मिलेंगे जिनका हमारी लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो आपको मजा आने वाला है इस क्लास में। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने 2 वीडियोस डाले हैं और 3 पिक्चर्स डाली हैं। आपको उन तीनों पिक्चर्स में जो दिया गया है उसको रीड करना है और दोनों वीडियोस को देखना है। उससे आप ये समझेंगे व्हाट इज द सोशल साइंस एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सोशल साइंस इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में सोशल साइंस का क्या रोल है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। काट के अगली क्लास में हम, हाँ बेटा बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर हम ये बोल रहे हैं कि अभी क्लास काट के देखना है या फिर क्लास के बाद देखना है? क्लास के बाद बेटा, अभी क्लास खत्म हो चुकी है। अगर आपको कोई भी चीज पूछनी है मुझसे, कोई चीज जाननी है तो बेटा पूछ लीजिए, उसके बाद हम क्लास को खत्म करेंगे। कोई चीज पूछना चाहते हैं आप? नो सर। नो सर। नो सर। ओके सर ओके, द क्लास इज ओवर, नाउ यू कैन लेफ्ट योर क्लास। बाय सर। ओके बेटा, बाय सर। हैव अ बाय नाइस बेटा। बाय सर। बाय सर। फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं? हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं? क्या? फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं? फर्टिलाइजर नहीं, फर्टिलाइजर बेटा। फर्टिलाइजर यानी खाद। जो हम जमीन में जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स में उनको इम्प्रूवमेंट, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए हम कुछ ऐसी चीजें डालते हैं उनमें, जो उनके जो सेल्स होती हैं अंदर, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनको उनके ग्रो करने के लिए ऐसी चीजें डालते हैं, उनको हम फर्टिलाइजर बोलते हैं। उनमें कुछ केमिकल्स भी होते हैं, कुछ बायो, जैसे आप देखते होंगे जैसे खाद होती है हमारी, जैसे गोबर की खाद होती है ना, जो बायो से बनती है। कई ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे मिलाकर के हम फर्टिलाइजर बनाते हैं, है ना। केमिकल फर्टिलाइजर होता है ना, बायोकेमिकल भी होता है और बायो फर्टिलाइजर भी होता है। फर्टिलाइजर मीन्स खाद, जो फसलों को ग्रो करने के लिए उनमें डाला जाता है। पानी के साथ साथ खाद भी डाला जाता है, जैसे यूरिया होता है ना, डीएपी होता है। और आप देखते होंगे जो वर्मी कंपोस्ट होता है, एक तरह से बायो कंपोस्ट होता है। ये सब RTI रुक गया। ठीक है बेटा, समझ में? यस यस सर। यस सर। यस सर। ध्यान में रखिए, अगली क्लास में आप उनको ठीक है बेटा। सर एक मिनट, एक्सक्यूज मी सर।